Okay, so I can see Devika and Nancy, both of them have joined. Come on, girls, you come in the frame and let's start the conversation. Okay. Okay, ma'am. Hi, pretty girl. How are you? Wait, Devika, actually, Nancy, उसने mic के साथ, हाँ, she's connecting with the audio. Wait, now, Nancy, restart. Hello. Hello. Hello, Devi. Hi. How are you? I'm good. And you? Oh, that's really nice. What's your name? My name is Devika. Where are you from? I'm from Imphal, Manipur. Oh, what's your profession? I'm a student by profession. Oh, really good. What are your qualities? I think I'm a creative person. Oh, what are your hobbies? My hobbies are listening to music, solving mathematical problems, traveling, and Oh, cooking. that's really nice. How many members are there in your family? There are four members in my family. Oh, that's really nice. What's your father's and mother's names? Sorry, profession. My father is a government employee. My mother is a homemaker. Oh, how many brothers and sisters are you? We are one brother and one sister. What's your best friend's name? Sorry, I don't believe in the concept of one best friend. I have a lot of friends. They are all really important. Oh, nice to meet you. Okay, Devika, you. अच्छा, कौन बात कर रहा है किसके घर Our quality. Om Prakash, ma'am. Just a second. ओम प्रकाश अपने माइक को म्यूट रखना है ताकि जब मम्मी गुस्सा करें तो हमको नहीं पता चले, है ना? Okay, Nancy and Devika, you continue with that. Okay, ma'am. Okay, Devika, you will ask me. You can. Okay, I will. Yeah. Hi. Hi, Where are you from? I'm from Katni. What's your profession? I am, yes, sorry. What's your profession? I am a student. What are your qualities? I am a polite woman. What are your hobbies? My hobbies are listening to music, singing, and surfing internet like this. How many members are there in your family? There are four members in, there are four members in my family. Okay. What's your father's and mother's profession? My father is a hardware mechanic and my mother is a homemaker. Oh, that's good. How many brothers and sisters are you? I have one elder brother only. Okay. What's your best friend name? My best friend, my mom, and college friend Bunty. Thank you. Nice to talk to you. Nice to meet you too. Very nice, wonderful. Okay, bye. Have a nice day. Same here. Very Thank good. you. Such a nice, soothing you have done. I hope this must have given you an idea कि conversations अगर बातचीत शुरू करनी है तो फिर कोई भी topics आप शुरू कर सकते हैं. You can start off with that. Okay, तो हमारा जो second topic है, which is a grammar topic. As you remember, I told you that we are going to have a wonderful session about, parts of the speech and tenses. So हमारे यहाँ पे है ना सबसे पहला जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं that is about tenses.
बिल्कुल बिगिनिंग वाली लेसन्स होते हैं और उसे कहा जाता है इज एम आर का यूज. यस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला जो वर्ब हम सीखते हैं या जो सबसे पहला वर्ब के काम में से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा यूजफुल जो वर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड इज एम आर. तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर, उसी का पास्ट में यूज एंड इट्स यूज इन फ्यूचर टेंस ऑल्सो. तो हम 3 टेंसेस में इज एम आर को ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी. पहला टेंस आपको पता होता है, दैट इज प्रेजेंट टेंस. द सेकेंड वन इज कॉल्ड पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस. तो हम इज एम आर को तीनों टेंसेस में पढ़ेंगे और हम इसका मतलब है ये समझ सकते हैं कि हमने टेंसेस आज से शुरू किए हैं. जहां तक बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, वर्ब, है ना. तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये हम टाइम टू टाइम वी विल बी स्टडिंग इन द मिडल ऑफ टेंसेस. टेंसेस के बीच बीच में इनको पढ़ते जाएंगे जहां जहां जैसी जैसी जरूरत होगी. ठीक है. तो क्योंकि अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया 2 दिन, उसके बाद आपने क्वेश्चनायर किया और आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर सभी क्वेश्चंस इज एम आर बेस्ड थे या फिर सेंटेंसेस इज एम आर बेस्ड थे. आज हम वहीं से शुरुआत करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. आप लोग नोटपैड के साथ बैठे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग. बाकी एक्सप्लेनेशन इसमें ऑलरेडी है. यस, सो I really believe that my screen is visible. Okay, so let's get started with the first part. सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि पूरी इंग्लिश जो ग्रामर होती है ना, वो इन 3 वर्ब्स पर टिकी होती है. ये जो 3 वर्ब्स आप देख रहे हैं जो मैंने बनाए हैं, इन पर ये पूरी ग्रामर टिकी होती है. और ये 3 वर्ब्स हैं. पहला है बी वर्ब. देखिए बी वर्ब आप लोग जनरली सोचते हैं कि बी मतलब कैसे पता चलेगा कि ये बी क्या है, क्योंकि हमने बी पहले कभी यूज नहीं किया या सुना नहीं है. यूज भी किया है तो इतना ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है. हैव हमने सुना है, जिसमें हैज और हैव हमें पता है, हैड पता है, डू भी पता है, हम जानते हैं, डू हमने सुना हुआ है, डू, डज, डिड सुना हुआ है. डूइंग बहुत यूजफुल है, ज्यादातर यूज करते ही हैं. लेकिन ये बी नहीं है. हमने इज एम आर सुना है, वॉज वर सुना है, लेकिन हमने बी नहीं सुना है. तो मैं बताना चाहूंगी कि इज एम आर जो वर्ब होती है, उसका दूसरा नाम या फिर हम कहें कि सिनोनिम या फिर हम कहें कि उसका सेकंड फॉर्म, दूसरा जो फॉर्म है, मतलब पास्ट फॉर्म की बात नहीं हो रही है, दूसरा जो नेम है वो बी वर्ब भी होता है. तो आप ये बस ध्यान रखें कि इज एम आर को बी वर्ब भी कहते हैं. और बी का मीनिंग बनना या होना, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, दोनों से होता है. आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर और आई एम अ डॉक्टर, है ना. सो बी का मतलब ही होता है बनना या होना. और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा, जब हम पढ़ते जाएंगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट यस, अब जो बी वर्ब है उसको इज एम आर के हिसाब से भी हम लोग समझते हैं. वी अंडरस्टैंड इन इज एम आर मैनर ऑल्सो. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग 3 वर्ब्स पढ़ते हैं. पूरे टेंसेस में 3 वर्ब्स पढ़ते हैं. और पहली वर्ब होती है बी, इज एम आर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों पढ़ेंगे. दूसरी होती है हैव, हैज और हैव के अलग अलग यूसेजेस. एंड तीसरी जो डू है, अब यहाँ पे डू का मतलब केवल डू से नहीं है. डू का मतलब जो है अदर वर्ब फॉर्म्स से भी है. मतलब जितने ज्यादा एक्शंस हैं उतनी वर्ब डू के अंदर आती हैं. डू का मतलब होता है करना. तो करने के अलावा देयर विल बी सोना, खाना, पीना, हंसना, पढ़ना, सोचना, निर्णय लेना एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कई हो सकती हैं. ठीक है.
तो डू मतलब हो गया सारी एक्शन वर्ब्स, हम वो डू वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। तो बस टेंसेस फिर खत्म हो जाते हैं और हमें सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी। ठीक है, अब सबसे पहले हम सब साथ में नहीं पढ़ते हैं, वन बाय वन हम समझकर हम इनके यूसेजेस पढ़ते हैं। सो सबसे पहला जो टेंस है विच इज कॉल्ड, जो सबसे पहली वर्ब होती है वो इज एम आर या बी वर्ब ही होती है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन इस तरह से किया कि इजेमार को हम बी भी कहते हैं। अच्छा, बी आपने बी खुद भी यूज किया है, लाइक आपने कहा ही होगा कभी ना कभी किसी न किसी से, that I want to be an engineer or I want to be a teacher, I want to be a government employee or a bank manager or a banker. I want to be this, I want to be everything in the world. Whatever I can become. तो बिकम और बी को आपने इस तरह से यूज किया होगा बनने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि इजेमार का भी मीनिंग बी देता है, दैट इज कॉल्ड होना। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो ये भी बी का ही पार्ट होता है। सो यस, इजेमार को हम बी कहते हैं, लेकिन इजेमार को अलग जगह यूज करते हैं, बी को अलग जगह यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है कि बी को सबसे पहले इजेमार के रूप में यूज करते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगी कि बी खुद कैसे यूज होता है, लेकिन दोनों फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं, इसलिए इनका यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। तो इजेमार या बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं, और सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। इसमें बी कब यूज होगा वो मैं इसके बाद आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अच्छा, इसका पास्ट भी बना सकते हैं, एंड सॉरी, इसका पास्ट भी बना सकते हैं। पास्ट इसका इजेमार का भी पास्ट वॉज वर है, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से अलग अलग है। बी का भी पास्ट वॉज एंड वर ही है। तो कोई आपसे पूछे कि यार आप डॉक्टर आपको कहना है कि यार बी का कोई पास्ट अलग से है क्या, बैड और बीड कुछ ऐसा है क्या? नहीं, बी का पास्ट भी वॉज वर है और इजेमार का पास्ट भी वॉज वर है। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, हूं और था। ठीक है, फ्यूचर में इजेमार और बी का फ्यूचर होता है, ध्यान दीजिएगा, बी, और विल और शैल लग जाता है फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स। तो पता चल जाता है ओके अंडरस्टूड है, पूरा विल बी और शैल बी फ्यूचर टेंस होते हैं किसके, इजेमार के। यस, अच्छा, वॉज एंड वर का भी फ्यूचर टेंस विल बी शैल बी ही होता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अगर इजेमार का पास्ट वॉज वर है तो इजेमार का फ्यूचर विल बी शैल बी है। इसका मतलब है कि जब इजेमार का पास्ट वॉज एंड वर है और फ्यूचर विल बी शैल बी है, तो फिर वॉज एंड वर एंड विल बी शैल बी का भी कनेक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, इजेमार का पास्ट है वॉज एंड वर, इजेमार का फ्यूचर है will be and shall be। कहाँ लगते हैं, अपन बात करेंगे इस बारे में। अगर बोले कि will be shall be का प्रेजेंट क्या है, तो जवाब आना चाहिए इजेमार है। ओके, will be shall be का पास्ट क्या होना चाहिए? सिंपल आंसर, it is, was and were। इसके साथ क्या लगता है, ये बात का डिस्कशन है, पहले रिलेशन जरूरी है। कोई आपसे बोले अच्छा ठीक है अंडरस्टूड, इजेमार अंडरस्टूड, बी का फ्यूचर क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, विल प्लस बी, शैल प्लस बी। अच्छा, इसका पास्ट क्या है? हाँ, पास्ट इसका है वॉज एंड वर, मतलब बी नहीं आएगा, वॉज एंड वर ही इजेमार का भी पास्ट है, बी का भी पास्ट है। दैट्स व्हाई इजेमार एंड बी आर फर्स्ट फॉर्म्स, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस में यूज होते हैं। कहाँ अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी फैमिली चार्ट हो गया। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ,
जो मैंने पहले वाली क्लासेस में नहीं बताया है लेकिन आपकी क्लास में बताती हूँ कि देखो इज़ेमार फर्स्ट फॉर्म होती है, रिमेम्बर इज़ेमार एंड बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। पास्ट में जाते हैं तो वॉज एंड वर्ब सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं जिसमें से इज़ेमार फर्स्ट है, कोई भी वर्ब हो 5 फॉर्म होंगी। वॉज एंड वर सेकेंड है लेकिन फ्यूचर थर्ड फॉर्म नहीं होती है। थर्ड फॉर्म के लिए हमको थोड़ा सा समझना होगा कि बी की थर्ड फॉर्म और इज़ेमार की थर्ड फॉर्म बीन होती है और बी और इज़ेमार की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। यस, देखा, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए एक दूसरे के भाई भाई हैं, बहन बहन है ऐसा। तो इज़ेमार की थर्ड फॉर्म फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर फ्यूचर होता है, वो कोई फॉर्म नहीं होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म बीन है और फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म कहलाती है, तो बीइंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगती है। प्रेजेंट में कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब्स लगती हैं, पास्ट में कौन सी लगती हैं एंड फ्यूचर में कौन सी लगती है, क्योंकि 2 या 3 ऑप्शंस हैं। क्या करें, चलो बनाते हैं सेंटेंसेस। थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म में आपको आगे वाले टेंसेस में पढ़ाऊंगी, अभी उसका यूज नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट कौन होते हैं। वैसे तो मैं आपको सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अभी क्योंकि हम वर्ब सीख रहे हैं कि किसके साथ कौन सी लगती है, तो सब्जेक्ट का एक क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है एक्शन का डूअर, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन सेंटेंस होता है। जी हाँ, सेंटेंस 2 तरीके से बनते हैं, एक्चुअली 3 तरीके से बनते हैं। पहला होता है एक्शन, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मेरा भाई बहुत मस्ती करता है, या फिर मेरे पापा जी बहुत मेहनत करते हैं, या मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मेरा दोस्त बहुत पढ़ाई करता है, ये सब एक्शंस हैं। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पापा जी मेहनती हैं, मेरी मम्मी बहुत केयरिंग है, मेरा भाई बहुत नॉटी है, मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ। ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें कहते हैं नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस। एक्शन वाले, नॉन एक्शन वाले। फिर बीच में एक और आ जाते हैं पोजेशन वाले। हे भगवान, अब ये एक नया कुछ हो गया है ना। पोजेशन का मतलब होता है ना एक्शन न नॉन एक्शन। उसका मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज होती है। सी, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ये एक बिना नॉन एक्शन सेंटेंस है, लेकिन पोजेशन बताता है। अब पोजेशन का हिंदी होता है जब आपके पास कुछ होता है, आप किसी चीज के मालिक होते हैं, आपका उस पर अधिकार है, आप रखते हैं। मेरे पास एक और एग्जांपल है, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। अच्छा, देयर इज अनदर एग्जांपल, मेरे पापा हैं, उनके पास उनकी कार है, माय फादर हैज हिज ओन कार। तो ये मेरे पापा के पजेस की हुई चीजें हैं, ये मेरी पजेस की हुई चीजें हैं, इन पर मेरा अधिकार है, ये मेरे पास है। तो ऐसे सेंटेंसेस नॉन एक्शन भी नहीं होते और एक्शन भी नहीं होते, वो पजेसिव होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम हैव वर्ब अलग पढ़ते हैं और हम नॉन एक्शन की इज़ेमार वर्ब अलग पढ़ते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि एक्शन का डूअर सब्जेक्ट कहलाता है, एक्शन का करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन जब एक्शन नहीं हो, पोजेशन या नॉन एक्शन सेंटेंस हो, जो हम सुनकर समझ जाएंगे, तो फिर उसका कोई एक्शन नहीं होता, तो डूअर नहीं होगा, लेकिन उसका वो व्यक्ति होगा जिसके बारे में वो सेंटेंस है। तो एक्शन का जो एक्शन करे वो सब्जेक्ट कहलाता है,
कर्ता कहलाता है, और दूसरा जिसके बारे में सेंटेंस है वो भी सब्जेक्ट ही कहलाता है। तो आई एम अ डॉक्टर, यहाँ पे सेंटेंस मेरे बारे में है तो आई सब्जेक्ट है। he is intelligent, वहां पर he के बारे में सेंटेंस है तो he सब्जेक्ट है। अगर मुझे कहना है that she has a car, उसके पास एक कार है, तो she के पास एक कार है, she के बारे में बात हो रही है तो she सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट डिफरेंट होते रहते हैं। अब ध्यान रखेंगे, वैसे हम 7 सब्जेक्ट्स देखते हैं। I मतलब मैं, we मतलब हम, प्लूरल है, यू मतलब आप, एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों बताता है। ही सिंगुलर है, वह लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, वह, इट लड़का लड़की नहीं है, दूसरे हैं, मतलब नॉन जेंडर्स जो है, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन जेंडर्स जिनके जेंडर लाइक जो पर्सन्स नहीं है, लेकिन एनिमल्स हैं, उनके साथ इट लग सकता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल कुर्सी ये सब, तो उनके साथ इट लग सकता है। दे जो है उनका मतलब होता है वे हिंदी में, और दे प्लूरल होता है, ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं। वे मेरे दोस्त हैं तो बोलेंगे दे आर माय फ्रेंड्स, ऐसा। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। सारे के सारे प्रोनाउंस हैं क्योंकि नाम नहीं है। अब नाम नहीं है और सब्जेक्ट है तो प्रोनाउंस है। नाम होते तो नाउन होते, है ना, नाम होते तो नाउन होते, जैसे खुशबू, जैसे अमित, जैसे नैन्सी, जैसे बोधिराज, लाइक देविका, या फिर भोपाल, इंदौर, इंडिया, अमेरिका, ताजमहल, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, ये सारे सबके नेम हैं, ये भी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये नाउन्स हैं जिनके नाम है, सिंगुलर एक होगा, प्लूरल एक से ज्यादा होंगे, तो वो भी वहां पर आएगा। और लेकिन जब आप बात करेंगे प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट्स की, जिसमें कोई नाम नहीं होगा और फिर भी पर्सन होगा, तो फिर ध्यान रखेंगे इस केस में हम लोग उसे बोलने वाले हैं कि वो है प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट्स, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है मैं बताती हूँ। नाउन है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे मैं बोलूं माय नेम इज खुशबू, खुशबू इज अ टीचर, खुशबू is confident, खुशबू is खुशबू likes playing, खुशबू likes reading, बार बार खुशबू 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 रिपीटिशन हो रहा है, नाम का रिपीटिशन हो रहा है, नाउन का रिपीटिशन हो रहा है। तो याद रखेंगे कि रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउंस लगाते हैं। भाई माय नेम इज खुशबू ना, तो अब मैं बोलूंगी आई एम कॉन्फिडेंट, खुशबू को रिप्लेस कर दिया, है ना। वैसे नाउन प्रोनाउन हम 3rd या 4th लेसन में पढ़ेंगे, ये ग्रामर का 1st लेसन है। लेकिन क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी, लेकिन आप ये नहीं समझना कि मैं आधा बताऊंगी। आई टेल यू एवरीथिंग, लेकिन इंट्रोडक्शन के टाइम पर, क्योंकि टॉपिक हमारा कुछ और है, नाउन प्रोनाउन भी लेंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर नेम्स भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट्स की जगह पर नेम्स भी हो सकते हैं, और सब्जेक्ट्स की जगह पर प्रोनाउंस, नेम नहीं जबकि पर्सन ही है, सब्जेक्ट्स ही हैं पर विदाउट नेम है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। मैं के लिए आई, हम के लिए वी, यू के लिए तुम या आप, वह है लड़का है तो ही, वह लड़की है तो शी, और चीजें हैं, एनिमल्स हैं, टाइम है, डेट है, उसके लिए इट। जी हाँ, टाइम और डेट के लिए इट लगाते हैं। जैसे इट इज 7th February today, ओके। दे जो है वो प्लूरल लोगों के लिए और चीजों के लिए भी लगता है ना। तो ये ओवरऑल 7 सब्जेक्ट्स हो गए। अब ये देखना है कि किसके साथ इज एम आर लगता है और कैसे लगता है। अब ध्यान रखिएगा, इज एम आर में से एक मैडम को उठाइए, एम मैडम को, और उनको आई के साथ लगा दीजिए, क्योंकि आई एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम लगता है। आई और एम जो है वो एक दूसरे के साथ में पहले से सेट होकर आए हैं,
वो दूसरे किसी के साथ लगती ही नहीं है, वो हमेशा आई के साथ लगती है, तो यूनिक वर्ब है। ठीक है, एम। बाकी बचे आर और इज। तो आर लगते हैं सभी प्लूरल्स के साथ में, इंक्लूडिंग यू। जी हाँ, और बाकी बचे हुए एक एक जो सब्जेक्ट बताते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स बताते हैं, उनके साथ लगता है इज। सो यस, वी हैव वी आर, you are, he is, she is, it is, लेकिन they are होना चाहिए क्योंकि they plural होता है। ठीक है, I am, I am, we are, we are, you are, you are, he is, he's, she is, she's, it is, it's, they are। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स भी बता दिए हैं, वैसे आगे प्रैक्टिस करेंगे। अब ये तो प्रेजेंट की समझ में आ गया। ओके, इज एम आर डन, बी कब लगेगा बाद में बताऊंगी, अभी नहीं, है ना। अच्छा, अब आते हैं पास्ट में, वॉज एंड वर। ओके, तो ध्यान रखना है, आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, आई वॉज। वी के साथ हमेशा वर लगेगा क्योंकि आर के साथ, आर का पास्ट वर होता है प्लूरल के लिए। इसमें आई के लिए अलग से कोई वर्ब नहीं है, वॉज ही लगेगा, सभी सिंगुलर्स के साथ वॉज और सभी प्लूरल्स के साथ वर। तो हो जाएगा आई वॉज, वी वर, यू वर, he was, she was, it was, and they were, they were। ठीक है, डन, क्लियर, पास्ट का भी समझ में आ गया। फ्यूचर में कैसे पता चलेगा, एक तो दो दो देके रखे, विल और शैल, और फिर पता कैसे चलेगा किसके साथ होगा। तो यहाँ पे हम प्लूरल सिंगुलर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। देखिए, पास्ट एंड प्रेजेंट में हमने प्लूरल और सिंगुलर का कॉन्सेप्ट लगाया था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा आई और वी। ध्यान से देखना, आई और वी, ये मैंने इनको, आई हैव हाईलाइटेड दैट, I and V, just a second. See, I and V का कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। ध्यान रखना, स्पोकन इंग्लिश में या मॉडर्न इंग्लिश में हम I और V, मैं और हम सब, हम के लिए हम will भी लगा सकते हैं, या मैं सिंपल बोलूं तो will भी लगा सकते हैं और shall भी लगा सकते हैं। We can use will and shall, दोनों, या तो ये लगाओ या ये लगाओ। ये चीज I और V फॉलो करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में, पहले ओल्ड इंग्लिश में सिर्फ shall लगता था, मॉडर्न इंग्लिश में रूल आया, काफी साल पहले आया, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश का रूल कहलाता है कि will भी लग सकता है और I और V के साथ में। इसका मतलब है आजकल जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमारे स्कूल, कॉलेज या फिर कोई भी कंपैटिटिव एग्जाम्स हो, सब में हम विल लगा सकते हैं आई और वी के साथ में। यस, अगर हम शैल लगाना चाहेंगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर हमने विल भी लगा दिया तो वो भी गलत नहीं है। तो बस लगा दीजिए, या तो बोलिए आई विल बी या फिर बोलिए आई शैल बी। यस, नेक्स्ट इज वी विल बी या वी शैल बी। लेकिन फिर कान पकड़ लीजिए कि बाकी सबके साथ में यूज शैल भी तो नहीं करेंगे, विल करेंगे, है ना। शैल बड़ा स्पेसिफिक होता है, वो हमेशा आई और वी के साथ आता है, और विल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है कि वो मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी लगने लगा। इसका मतलब है वो पहले से बाकी सबके साथ लगता था, शैल नहीं लगता था। शैल को केवल दो के साथ यूज करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, तो you will be, he will be, she will be, it will be, they will be। ठीक है, ये तो हो गए वर्ब का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान रखना है कि आप हमेशा सेंटेंसेस बनाएं एंड प्रैक्टिस करें, तभी चीजें समझ में आती हैं। तो मैंने क्या किया, हम शॉर्ट फॉर्म्स कल पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कल हम इन्हें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आज समझाऊंगी, कल कंप्लीट करूंगी।
आज समझाऊंगी, कल कंप्लीट करूंगी। ध्यान रखना है कि आपको पता है इज एम आर या जो बी वर्ब है ये दो तरीके से काम करती है। मुझे हमेशा लोग कहते हैं मैम मैंने तो सुना है कि इज एम आर जो है वो केवल हेल्पिंग वर्ब है, ओनली हेल्पिंग वर्ब। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कहीं तो भी केवल हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज है, और चेंज होता है कि जो वर्ब है ना, कौन सी वाली वर्ब, मैं इसको बी वर्ब भी कहती हूँ क्योंकि सिंपल है, जल्दी से बोल देते हैं। बी वर्ब मतलब इज एम आर है ना, तो जो इज एम आर या बी वर्ब होती है ना, ये दोनों का काम करती है। याद रखना, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ओनली मेन वर्ब होती हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दोनों होती हैं। इज एम आर वही वर्ब है जो दोनों हो सकती है। ये एक मेन वर्ब भी हो सकती है, मतलब यही मेन वर्ब है, इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब ही नहीं है पूरे सेंटेंस में, ठीक है। और ये एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, इसका मतलब है ये केवल हेल्प के लिए बैठी है, उसका दूसरा कोई व्यक्ति है जो दूसरा काम कर रहा है, वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ध्यान रखना है कि ये वर्ब जो है अलग अलग टेंसेस में यूज होगी। जब ये मेन वर्ब है तो ये सारे सिंपल टेंसेस में यूज होती है। सिंपल टेंसेस बताऊंगी क्या होते हैं, लेकिन सिंपल टेंसेस में यूज होती है प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में। तो इसका तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ना। और जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, यही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में ये कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ मेन वर्ब वाले, सिंपल टेंस वाले। देखना, सेंटेंस है, मैंने क्या किया, अपनी नेम बताया, मैंने आपको अपनी जॉब बताई, मैंने अपनी क्वालिटी बताई, गुड बैड, तो मैं गुड ले रही हूँ, मैंने अपनी करंट पोजीशन बताई, और मैंने आपका मेरा रिलेशन बताया। मैं सेंटेंसेस पढ़ देती हूँ पहले। आई एम खुशबू तोमर, आई एम अ टीचर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन माई क्लास, आई एम योर टीचर। आप जब ये 5 सेंटेंसेस पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यस मुझे तो कोई एक्शन नहीं दिखता है। आई एम खुशबू तोमर में नेम बताया जा रहा है, इट्स लाइक आइडेंटिटी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई एक्शन है। मैं खाना खा रही हूँ, जाती हूँ, ये करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम अ टीचर, यहाँ पर भी जॉब ही बताई है मैंने, कोई एक्शन नहीं है, ना पोजेशन है ना एक्शन है। मतलब मैं टीचिंग कर रही हूँ या मैं टीचिंग करती हूँ, ऐसा सेंटेंस ही नहीं है, मैं तो टीचर हूँ। सेंटेंस ये है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन माई क्लास, आई एम योर टीचर। सब ध्यान से देखिए, और कहीं पर भी अगर आपको एक भी एक्शन नजर आ जाए तो फिर कॉन्सेप्ट गलत है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, नो एनी अदर वर्ब, और वो वर्ब है एम। एक ही वर्ब है, दूसरी कोई वर्ब है ही नहीं, नो एक्शन वर्ब एट ऑल। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट कहता है कि एम यहाँ पर मेन वर्ब है और ये अपना काम कर रही है नॉन एक्शन वर्ब की तरह, नॉन एक्शन वर्ब की तरह काम कर रही है। ना ये एक्शन है, ना ये पोजेशन है। मेरे पास खुशबू तोमर है, ऐसा भी नहीं है सेंटेंस। मेरे पास एक टीचर है, ऐसा भी नहीं है सेंटेंस। मैं कॉन्फिडेंट करती हूँ, ऐसा भी नहीं है सेंटेंस। सेंटेंस केवल बता रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एक्शन। यस, तो जब आप बात करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट मेन वर्ब, जो सिंपल टेंस होता है, उसमें इज एम आर एज अ मेन वर्ब काम करती है। मैंने प्रेजेंट का सेंटेंस लिया है, हम पास्ट को भी बना सकते हैं इसी तरीके से, हम फ्यूचर को भी बना सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट बेस पर। तो हम ये चीजें कल सीखेंगे। मैं ये शीट आपको दे रही हूँ, एंड ये शीट आप लोग रीड कीजिए, पूरा भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि वन बाय वन वी विल बी लर्निंग द एक्सप्लेनेशन पार्ट इन दैट, ठीक है। ग्रामर को सीखने के लिए हमेशा थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबल होना होता है, क्योंकि ग्रामर के रूल्स जो हैं हमेशा एक रूल है और उसमें एक और रूल ऐड हो जाता है। लैंग्वेज है ना, तो अपडेटिंग चलती रहती है, और वो रूल हम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये कॉन्सेप्ट है नॉन एक्शन का, जिसमें एक ही वर्ब है,
और इसमें इजएमआर ही क्यों लगाया है ये अपन कल बात करेंगे। इसमें दूसरी कोई वर्ब क्यों नहीं लगाई है इस बारे में हम कल बात करेंगे। ये तो पक्का हो गया कि इजएमआर एक ही वर्ब है, यहाँ पर एम एक ही सिंगल वर्ब है, तो यही मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके साथ में, ना ये खुद हेल्पिंग वर्ब है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे इजएमआर ही, एम ही क्यों लगाया, यहाँ पे हैज और हैव भी तो लगा सकते थे, डू भी तो लगा सकते थे। इस बारे में हम कॉन्सेप्ट लर्निंग करने वाले हैं कल। अच्छा, कल आपकी क्लास वैसे होती नहीं है, क्लास होती नहीं है ना। क्लास बेटा फिफ्थ फॉर्म जो होती है ना वर्ब की, वो फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो हम कहते हैं, देखो देयर आर 5 फॉर्म्स, है ना। जो ओरिजिनल वर्ब होती है ना, जैसे गो, कम, ईट, जो जिस नाम से हम बुलाते हैं उन्हें, वो हमेशा प्लूरल होती है। ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, जो फर्स्ट फॉर्म है ना वो हमेशा प्लूरल होती है, लाइक गो, कम, ये ओरिजिनल फॉर्म्स है, ये प्लूरल है। वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है ना, गो, वेंट, वो सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म आपको पता है गॉन, गो, वेंट, गॉन, एंड आईएनजी आपको पता है फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग। लेकिन जो जीओ और उसमें ईएस लगा देते हैं गोज, तो सिंगुलर फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इज एम आर, तो इज एम आर में से आर प्लूरल है, वो फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान देना, आर प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म है। इज और एम सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म है। वॉज एंड वर, ध्यान देना, वॉज एंड वर भले ही सिंगुलर प्लूरल हैं पर हैं हमेशा पास्ट के, ठीक है, वो फिफ्थ फॉर्म में नहीं आएंगे, वो पास्ट के हैं। बीन, बीन थर्ड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है, और बीइंग आईएनजी फॉर्म है। तो वर्ब की जो एस ई एस या सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं वो फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। दे आर नोन एज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, लाइक गोज, लाइक कम्स, जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो वो हम वर्ब्स वो भी पढ़ेंगे, तो वो फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। मतलब वर्ब में एस और एस वाली फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी मीटिंग 1 मिनट में फिनिश हो जाएगी, सेकेंड पार्ट चल रहा है। और आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, स्पेसिफिकली कौन सा वाला, किसके साथ में कौन सी वर्ब लगती है, और सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, लाइक दैट। एम आई करेक्ट? कम ऑन, शो मी योर थम्स। अच्छा, जनरली हम लोग कल क्लास नहीं करते, कल सैटरडे है। सैटरडे को संदीप सर की क्लास होती है 7 बजे, 7:15 बजे से 7:15 to 8 o'clock। आपको कल शाम की क्लास अटेंड करनी है 7:15 to 8 o'clock। बट रिमेम्बर, कल आपको मॉर्निंग क्लास भी अटेंड करनी है, बिकॉज हमने परसों क्लास नहीं किया था, सो उस क्लास को हम कंपलसेट कर रहे हैं कल के दिन। तो कल 8 बजे क्लास है, सब लोग रेडी रहेंगे, लेकिन कल शाम की क्लास के लिए भी रेडी रहेंगे, ठीक है? इज दैट ओके? अरे भैया कुछ तो बोलिए, कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, कुछ तो बोले। Yes, ma'am. यस, नो, Yes, ma'am. वेरी गुड। ऐसे जवाब दिया करो आप लोग, है ना, तो मुझे लगेगा कि चलो हम लोग सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर से बात नहीं कर रहे हैं वी आर एक्चुअली टॉकिंग टू ईच अदर, है ना। चलो फिर कल मिलते हैं। हाँ जी, संदीप दुबे सर का क्लास लेने वाले हैं, कितने बजे? 7:15 to 8। अभी बताया था मैंने, ध्यान से सुनो, 7:15 to 8 o'clock शाम को होगा, लेकिन